Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful, and Durood and Salam on his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Computer Science Class 10 Chapter number 4, जिसका नाम है डाटा एंड रेपिटेशन। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो है वो मस्ट है बोर्ड में, और ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो प्रोग्राम जो है वो पूछा जाए लूप में से। तो इसमें डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है सबसे पहले, उसके बाद एरे का जिक्र है। एरे का भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। तो पहले डाटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि आपके सामने हाईलाइट की गई है। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, यूज़ इसका क्या है, यहाँ पे यूज़ लिखा है। वी लर्न हाउ टू स्टोर pieces of data in the variables. What if we want to store and process large amount of data? Example given, the marks of 100 students. Probably we need to declare 100 variables, which does not seem an appropriate solution. So high-level programming languages provide data structures in order to store and organize data. यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द यूज़ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, या दूसरे लफ्ज़ों में पूछा जा सकता है व्हाई वी यूज़ डाटा स्ट्रक्चर। इसके बाद नीचे ये इसकी डेफिनेशन है। डाटा स्ट्रक्चर इज़ अ कंटेनर टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स इन अ स्पेसिफिक लेआउट। डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स are available in C programming languages. C programming language. Only one of them, which is called array, is discussed in this chapter, in this book. Array is one of the most commonly used data structure. So this is the definition of data structure, and here is the definition of array. It is a data structure. An array is a data structure that can hold multiple values of same data type. Example given, an int array can hold multiple integer values, a float array can hold multiple real values, and so on. An important property of array is that it stores all the values at consecutive locations inside the memory, computer memory. So what does it mean by consecutive? Consecutive means at same memory locations that are connected with each other. So this is the definition of array. And the next question, short question, is what is array declaration? यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन array डाटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को मिला के लिख देंगे। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले आप लिखेंगे डाटा टाइप, उसके बाद एरे नेम, उसके बाद एरे साइज, और इनके ऊपर इसको लेबल किया गया है। अब इसकी लेबलिंग भी करेंगे जैसे यहाँ पे किया गया है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो इनको नीचे पॉइंट्स की सूरत में लिख दें, बुलेट्स की सूरत में। बुलेट्स क्या होते हैं? स्मॉल सर्कल्स होते हैं, छोटे छोटे से जो फील्ड सर्कल्स होते हैं वो बुलेट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इनको बुलेट्स की सूरत में लिख दें। डाटा टाइप, फर्स्ट बुलेट क्या होगी? टाइप ऑफ डाटा टू बी stored in array name, identifier of array, and the third one is array size, maximum number of elements that can be stored. Here's the example of declaring an array. If we want to declare an array of type int that holds the daily wages of a laborer for 7 days, then we can declare it as follows: int daily wages, आगे स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज है, जिसमें आप एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं 0 से लेकर 6 तक। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो जो साइज होगा अरे का, उस में आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं उससे एक कम एलिमेंट तक, यानी कि यहाँ पे इसका साइज 7 है, तो इसका लास्ट एलिमेंट जिसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं वो 6 होगा।
इसके बाद नीचे एक और एग्जांपल है फ्लोट मार्क्स 20। इसमें आप 0 से लेकर 19 तक एलिमेंट्स तक इनमें वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद है एरे इनिशियलाइजेशन। इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आगे सामने है। असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। An array can be initialized at the time of its declaration or later. An array initialization at the time of declaration can be done in the following manner. Data type, array name, n equals value 1 comma value 2 comma value 3 dot up to value n. So this is array declaration and initialization. यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर आपको दिया गया है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया उसने फ्लोट हाइट, आगे इसका साइज है 7 और आगे 7 वैल्यूज इसमें स्टोर की गई हैं। आप अपनी तरफ से भी वैल्यूज दे सकते हैं, क्योंकि इसकी डाटा टाइप फ्लोट है तो इसमें रियल वैल्यूज जो हैं वो स्टोर जो है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, रियल वैल्यू स्टोर की गई हैं। आप चाहें तो इसमें होल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज किया गया है। ये करैक्टर टाइप एरे है, इसका नाम है वोवल्स, इसका साइज है 5 और आप इसमें स्टोर कर सकते हैं वैल्यू 0 से लेकर 4 तक। फर्स्ट करैक्टर आपने इसमें स्टोर किया ए। अब ये देखिए कि जो करैक्टर है उसको सिंगल कोट्स में आप एनक्लोज करेंगे, तो फर्स्ट करैक्टर ए, सेकंड ई, थर्ड वन इज आई, देन ओ एंड देन यू। एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इनिशियलाइजिंग एन एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। तो इसके एडवांटेज ये है कि जब आप एरे को डिक्लेयर करते हो, अगर आप उसी वक्त इसमें वैल्यूज एंटर करना चाह रहे हैं तो आप उसके तमाम एलिमेंट्स में वैल्यू एक ही वक्त में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और बाद में एरे को डिक्लेयर करने के बाद अगर आप वैल्यू स्टोर करते हैं तो आपको एक एक एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर करना होगी। आप तमाम एलिमेंट्स में इकट्ठी वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नोट की सूरत में उसने दिया है। क्वेश्चन ऊपर मैंने लिख दिया है, उसको पढ़ दिया है, इसको देख लीजिए। इफ वी do not initialize an array at the time of declaration, then we need to initialize the array elements one by one. It means that we cannot initialize all the elements of array in a single statement. ये एग्जांपल दी गई है। इस एग्जांपल में आपको इस कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। देखिए वाइड मेन है, वाइड मेन के बाद एरे को डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे एरे का नाम है अरे रखा गया है, उसका साइज़ 5 है और यहाँ पे देखिए डिक्लेयर करने के बाद उसमें वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करने की कोशिश की गई है एक ही स्टेटमेंट में, जो कि एक एरर जो है वो की सूरत में आपके सामने आएगा। यहाँ पे उसने बॉक्स में एरर रिप्रेजेंट किया है, इनिशियलाइजिंग होल एरे आफ्टर डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। इसके बाद नीचे देखिए लिखा हुआ है द कंपाइलर जनरेट्स एन एरर ऑन द अबव एग्जांपल कोड एज वी ट्राई टू इनिशियलाइज द होल एरे इन वन सेपरेट स्टेटमेंट आफ्टर डिक्लेयरिंग इट। तो इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन वी इनिशियलाइज ऑल द एलिमेंट्स, और दूसरे लफ्ज़ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कैन वी स्टोर वैल्यूज इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर डिक्लेयरिंग इट इन अ सिंगल स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा नो। आप यहाँ पे ये एग्जांपल इसकी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद ये क्वेश्चन है एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। आपने एरे में डाटा स्टोर कर दिया, अब आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हाईलाइट मैंने किया है, ईच एलिमेंट ऑफ एरे हैज़ एन इंडेक्स that can be used with the array name. Array name inside square brackets index to access the data stored at that particular index.
फर्स्ट एलिमेंट हैज़ द इंडेक्स 0, सेकंड एलिमेंट हैज़ द इंडेक्स 1 एंड सो ऑन। यहाँ पे आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि अरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होगा, 0, 1, 2 या 3। तो उसका आंसर होगा कि अरे का फर्स्ट इंडेक्स जो होगा वो हमेशा 0 होता है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि दिस दस हाइट 0 रेफर्स टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे हाइट। ये अरे हाइट कहाँ पे है, ये ऊपर हमने जो डिक्लेयर की है ये वाली, ठीक है। यहाँ पे अरे हाइट 7, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5.7, सेकंड एलिमेंट 6.2, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर है 5.7 है, सेकंड इंडेक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो 6.2 है। तो यहाँ पे ये आपको बताया गया है, thus height 0 refers to the first element of array, height 1 refers to the second element, and so on. This figure is very important to understand this concept. In this concept, different boxes are placed with each other and index is shown below the boxes. The first box represents the index value 0, the second box represents the index value 1, and so on, and the values inside the boxes represents the values that we store inside the array. It is also represented by an arrow, and as you can see above the boxes, array name is repeated. It means that we do not need to declare multiple variables of different names to store these values. The name remains the same, but their index values change. So the first index value is 0, then 1, then 2, then 3, and then so on. That how many times you use it. After that, a programming time 4.1 is given in your book, where the concept of array has been elaborated. Write a program that stores the edges of 5% in an array and then displays on screen. यहाँ पे आप देख सकते हैं सोल्यूशन के बाद हैश इंक्लूड एसटीडी और डॉट एच, ये स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। इसके बाद वाइड मेन, ये मेन फंक्शन है, यहाँ से इस फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है। इसके बाद इंट एज 5, यहाँ पे आपने अरे को डिक्लेयर किया, अरे का नाम है एज, इसकी डाटा टाइप है इंट और इसका साइज जो है वो 5 है, और इसमें आप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं 0 से लेकर 4 तक। जो यहाँ पे उसने मल्टी लाइन कमेंट दिया है इसको आप छोड़ सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अरे को डिक्लेयर करने के बाद उसने एक एक एलिमेंट में वैल्यू स्टोर की, एज 0 उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 25, एज 1 उसमें वैल्यू स्टोर कर दी 34। यहाँ पे एज जो है वो अरे का नाम है और 0 जो है वो उसका इंडेक्स है। इसको प्रिंट करने के लिए देखिए प्रिंट ऑफ की स्टेटमेंट है, इसके ऊपर जो मल्टी लाइन कमेंट है उसको भी आप छोड़ सकते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए उसने लिखा है। अ प्रिंट ऑफ द एजेस ऑफ 5 पर्सन्स आर, 5 मरतबा उसने फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी यूज़ किया, उसके बाद एज 0 कोमा एज 1 कोमा एज 2। अब इन एलिमेंट्स में जो वैल्यूज स्टोर है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगी। यहाँ पर उसने उसकी आउटपुट शो नहीं की, इसकी आउटपुट क्या आएगी 25, 34, 29, 43 एंड 19। एक और प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम में उसने क्या किया, मेन फंक्शन में उसने एरे डिक्लेयर की फ्लोट मार्क्स और उसका साइज़ रखा 4। तो इसमें आप कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, 0 से लेकर 3 तक आप इसमें एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स एक वेरिएबल यूज़ किया। अब देखिए प्रिंट एफ प्लीज एंटर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 सब्जेक्ट्स। यहाँ पे ये मैसेज यूज़र पढ़ेगा और फिर वो 4 वैल्यूज़ एंटर करेगा, जिनको स्पेस से वो पहले ही वैल्यू एंटर की, फिर स्पेस बार या एंटर की प्रेस करेगा, फिर दूसरी वैल्यू एंटर करेगा, फिर स्पेस बार की प्रेस करेगा, फिर तीसरी वैल्यू एंटर करेगा, फिर स्पेस बार की प्रेस करेगा। इसी तरीके से हर वैल्यू एंटर करने के बाद वो या तो एंटर की प्रेस करेगा या स्पेस बार की को प्रेस करेगा। और जब 4 वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगी तो उसके बाद वो एंटर की प्रेस करेगा। तो यहाँ पे वो 4 वैल्यूज़ एंटर करेगा। उसके बाद देखिए टोटल मार्क्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने जो अरे के एलिमेंट्स में वैल्यू स्टोर की थी उनको जमा कर दिया, जमा करके इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है टोटल मार्क्स, और बाद में हमने टोटल मार्क्स
जो वेरिएबल है उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा दिया, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होगी वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद देखिए आगे पास है यूजिंग वेरिएबल्स एज array indexes. A very important feature of array is that we can use variables as array indexes. Example given, look at the following program. इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं मेन के बाद array को डिक्लेयर किया, उसका साइज 5 है और इसमें 5 इंटीजर्स आपने स्टोर किए। इसके बाद देखिए मल्टी लाइन कमेंट को आप इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में आपने क्या किया, यहाँ पे आपने मैसेज डिस्प्ले किया, प्लीज एंटर द इंडेक्स हुज वैल्यू यू वांट टू डिस्प्ले, स्कैन एफ परसेंटेज टी एंड आई। और यहाँ पे देखिए यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे जो वैल्यू होगी एरे की वो डिस्प्ले हो जाएगी। फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्प्लेज द वैल्यू ऑफ द एरे एट द इंडेक्स एंटर्ड बाय द यूज़र, प्रिंट एफ द वैल्यू इज परसेंटेज डी एरे आई। अब यहाँ पे आपको इस्तेमाल बताया गया है वेरिएबल्स का कि हम एरे में इंडेक्स की वैल्यू को वेरिएबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके आउटपुट उसमें शो नहीं कि सपोज यूज़र एंटर करता है 1, तो देखिए 10 जो है उसका इंडेक्स 0 है, 20 जो है उसका इंडेक्स 1 है। तो अगर यूज़र एंटर करेगा 1 तो 20 वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसको यहाँ पे उसने फर्दर एक्सप्लेन किया, इसकी आउटपुट भी उसने नहीं दी। इस प्रोग्राम में देखिए सेम प्रोग्राम है। अब यहाँ पे उसने क्या किया, अब यहाँ पे मेन में 5 एलिमेंट्स उसने अरे में स्टोर किए। उसके बाद इंट आई इक्वल्स 2। अब देखिए 10 जो है उसका इंडेक्स 0 है, 20 का इंडेक्स 1 है, 30 का इंडेक्स 2 है। अब अगर हम प्रिंट एफ के फंक्शन में आई की वैल्यू रखेंगे तो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, 30 वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि 30 वैल्यू जो है उसका इंडेक्स 2 बनता है। अगर हम इसको 0 से स्टार्ट करें इंडेक्स को, बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू 0 होती है। अब आपने यहाँ पे प्रिंट एफ के बाद आई प्लस प्लस की स्टेटमेंट यूज़ की है। क्या करेगा, आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा, 1 का इजाफा कर देगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर आपने मल्टी लाइन कमेंट के बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की, अब आई की वैल्यू हो गई है 3। तो यहाँ पे दोबारा देखिए थर्ड एलिमेंट में जो वैल्यू स्टोर है, 0th एलिमेंट में 10, 1 में 20, 2 में 30 और थर्ड में 40। तो 40 वैल्यू जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास होगा। ये सारा शुरू से लेकर एंड तक आप देखेंगे। सबसे पहले अरे की डेफिनेशन आ जाएगी, उसका डिक्लेयर करने का सिंटैक्स आ जाएगा, उसको इनिशियलाइज करने का आ जाएगा, फिर उसमें वैल्यू स्टोर करने का, फिर उसमें से वैल्यूज एक्सेस करने का। ये कंप्लीट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आता तो इसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लाजमी पूछ लिए जाएंगे। इसके बाद आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लूप स्ट्रक्चर। ये जो है ये बोर्ड में इसमें से एक प्रोग्राम जो है उसके 100% चांसेस हैं कि पूछा जाएगा। इसकी डेफिनेशन करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे बुक में प्रॉपरली नहीं दी गई, तो यहाँ पे इसको देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फॉर लूप ये मैंने यहाँ पे लिखी है। फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। ये जनाब इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप्स आर अवेलेबल इन सी। तो इसका आप लिखेंगे सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स 3 काइंड ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट वन इज फॉर लूप, सेकंड वन इज वाइल लूप एंड थर्ड वन इज टू वाइल लूप। ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। पहला शॉर्ट क्वेश्चन हो गया लूप की डेफिनेशन फॉर लूप की, और दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हाउ मैनी लूप स्ट्रक्चर्स सी प्रोवाइड। इसके बाद देखिए जनरल स्ट्रक्चर ऑफ लूप, यहाँ पे आपको समझाया गया है एक एग्जांपल से। ये एग्जांपल है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर चाहें तो इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपने स्टेटमेंट को लाजमी जो है वो अपने आंसर में लिखना है। बहुत सिंपल है, इसको समझने के लिए देखिए लिखा गया, लेट्स अज्यूम दैट अ स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर आस्क अस टू टेक 10 राउंड्स ऑफ running track. How do we perform this task? First, we set a counter to 0 because we have not yet taken a single round of the
ट्रैक, आपसे कहा गया है कि एक ट्रैक है, उस ट्रैक के आपने 10 चक्कर लगाने हैं, आपके पास काउंटर है, आप उस काउंटर को 0 पे सेट करेंगे। अब आपने जब पहला चक्कर लगा लिया तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 1। फिर जब आप दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लिया तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2। फिर जब तीसरा चक्कर आपने पूरा कर लिया तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, इस तरीके से जब आपने 10 चक्कर कंप्लीट कर लिया तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 10। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में यही लिखा गया है। तो यहाँ पे आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टिपिकल डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ आपको लूप का कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए जनरल सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में पूछा जा सकता है। सिंटैक्स इसका इस तरीके से है, फॉर, इसके बाद इनिशियलाइजेशन, उसके बाद सेमीकोलन, फिर कंडीशन, उसके बाद सेमीकोलन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद कोड टू रिपीट, फिर उसके बाद एंडिंग कर्ली ब्रेसेस। ये 2 नंबर का सेंटेक्स है जो कि पूछा जा सकता है। अब इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, अगर गलती होगी तो हो सकता है बोर्ड में एग्जामिनर जो है इसके 0 मार्क्स दे दे, तो इसका आपने बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। इसके बाद इसका फ्लो चार्ट है, ये 2 मार्क्स का अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। इसमें देखिए स्टार्ट है, इनिशियलाइजेशन है, अब ये सीक्वेंस बताया गया है कि किस सीक्वेंस में लूप की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास ये स्ट्रक्चर दोबारा मैं लेके आ गया हूँ। इसमें अगर आप नंबरिंग करें तो इनिशियलाइजेशन ये फर्स्ट नंबर पे होगी, सेकंड नंबर पे कंडीशन जो है वो इवेल्यूएट की जाएगी, तीसरे नंबर पे कोड टू रिपीट ये एग्जीक्यूट होगा, चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इजाफा या कमी वो होगा। तो उसके बाद कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी में चला जाएगा, वरना कंट्रोल जो है लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपने अपने जहन में रखना है। यहाँ पे देखिए इस फ्लो चार्ट में आपको मज़ीद ये क्लियर होगा। इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्ट, उसके बाद इनिशियलाइजेशन, इसको आपने फर्स्ट नंबर पे जो है वो एग्जीक्यूट करना है। दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा चेक कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पोर्शन आ जाता है, और उसके बाद दोबारा जो है वो कंडीशन को चेक किया जाएगा। इसमें एक बात याद रखिए, आंसर में आ सकता है कि इनिशियलाइजेशन सिर्फ जो है वो एक ही मर्तबा होगी, बाकी तीनों चीज़ें जो हैं यानी कि कंडीशन को चेक किया जाएगा, और उसके आपने लूप की बॉडी में जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं कोड टू एग्जीक्यूट, वो कोड एग्जीक्यूट होगा पूरा का पूरा। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये 3 चीज़ें जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपके सामने है। इसमें देखिए ये 1 2 3 4 ये इसने उसी सूरत में ये सारी चीज़ें दी हैं। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और उसके बाद जो है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप द काउंटर वेरिएबल इज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अकॉर्डिंगली। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, इसका सुन लीजिए, समझ लीजिए। इनिशियलाइजेशन का मतलब है वेरिएबल को वैल्यू असाइन करना। इनिशियलाइजेशन इज द फर्स्ट पार्ट to be executed in a for loop. Here we initialize our counter variable and then move to the condition part. दूसरे नंबर पे कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन इज चेक्ड एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी फॉल्स देन वी कम आउट ऑफ द लूप। तीसरे नंबर पे अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आप लूप की बॉडी में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा गया इफ द कंडीशन इज ट्रू देन बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड। चौथा पॉइंट लिखा गया है आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द बॉडी ऑफ द लूप the counter variable is increased or decreased depending on the used logic, and then we again move to the step 2। तो यहाँ पे देखिए step 2 3 4 ये दोबारा एग्जीक्यूट होंगे। तो ये 3 स्टेप्स जो हैं ये बार बार एग्जीक्यूट होंगे जब तक ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, और इनिशिएशन जो है वो सिर्फ एक मरतबा एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आगे पास है नेक्स्ट, इसके बाद आगे पास नेक्स्ट आ रहा है एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखी हुई है। इस एग्जाम्पल में देखिए 4 int i इक्वल्स टू 0, ये इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया। इसके बाद आगे पास है i इज लेस देन 3, ये कंडीशन होगी। अब देखिए i की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है, 1 इज लेस देन 3। अब यहाँ से
प्रिंट एफ पाकिस्तान, पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा और यहाँ से आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब कंडीशन को दोबारा चेक किया जाएगा, 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, फिर पाकिस्तान प्रिंट होगा दूसरी मरतबा और फिर पाकिस्तान प्रिंट होने के बाद आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, दोबारा कंट्रोल आएगा बॉडी में, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट में तीसरी मरतबा पाकिस्तान प्रिंट होगा, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3, आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई की वैल्यू कर देगा 3, अब कंडीशन चेक की जाएगी, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन हो गई फॉल्स और आपका कंट्रोल जो है वो इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है इस लूप की जो कि आप लिखेंगे, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जो मैंने अभी आपको समझाई फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन, फ्लो चार्ट की डिस्क्रिप्शन में उसने 4 पॉइंट्स लिखे थे, यहाँ पे आगे बुक में उसने 7 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने उसको मुख्तसर करके 4 पॉइंट्स कर दिए हैं। पहला पॉइंट उसी तरीके से इनिशियलाइजेशन है, आपने आई को इनिशियलाइज किया 0 के इक्वल, उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो कंडीशन है, कंडीशन चेक की जाएगी, अगर कंडीशन ट्रू हुई तो आपका कंट्रोल जो है वो लूप की बॉडी में जाएगा, वरना लूप की बॉडी में नहीं जाएगा, उससे बाहर आ जाएगा। इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, देख लीजिए, सुन लीजिए, जहन नशीं कर लीजिए। Initialization expression is executed, that is int I equals 0. Here counter variable I is declared and initialized with value 0. अगर आपको लूप का जो है वो समझ आ जाता है प्रोग्राम, तो इसको भी आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंट आई इक्वल टू 0, ये इनिशियलाइजेशन हो गया, आई इज लेस देन 3 ये कंडीशन होगी, फिर प्रिंट एफ पाकिस्तान इसकी बॉडी होगी और आई प्लस प्लस ये इसमें इंक्रीमेंट हो गया। तो ये 4 पॉइंट यहाँ पे उसी तरीके से लिखे हुए हैं। सेकंड में कंडीशन है, कंडीशन इज टेस्टेड, दैट इज आई लेस देन 3, as variable I has value 0 which is less than 3, so condition turns out to be true and we move to the body of the loop. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट को मुख्तसर करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द कंडीशन इज टेस्टेड विच इज़ ट्रू सो द कंट्रोल विल बी मूव टू द बॉडी ऑफ द लूप। तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं, द बॉडी ऑफ द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, उसकी बॉडी में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट ऑफ पाकिस्तान, 10 पाकिस्तान इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन। इसके बाद चौथे नंबर पे देखिए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन इज एग्जीक्यूटेड, दैट इज आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस क्या करेगा, ये आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करेगा, दस द वैल्यू ऑफ आई इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 एज वेरिएबल आई हैड वैल्यू 0, सो आफ्टर दिस स्टेटमेंट आई कंटेन्स वैल्यू 1। इसके बाद बुक के 5वां 6वां 7वां पॉइंट मैंने ओमिट कर दिया, मिटा दिया, उसके बदले आप ये लिखेंगे, एज लॉन्ग एज the condition remains true the body of the loop will be executed, and when the condition becomes false the control is transferred outside the body of the loop and further code executes। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखिए, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 10 ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब इसी के रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का बोर्ड में आया था, उसमें क्या था देखिए, आपने सिर्फ 2 लाइंस लिखनी थी, सिर्फ 2 लाइंस यहाँ पे लिखी हुई हैं बुक में। पिछले साल ये लाहौर बोर्ड में आया था क्वेश्चन कि 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट कीजिए फॉर लूप को इस्तेमाल करते हुए। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो कि 1 से शुरू होते हैं और 10 तक जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपने छोटा सा 2 लाइनें लिखी, इससे पहले जाहिर सी बात है हैश इंक्लूड एसटीडी और डॉट एच भी लिखेंगे, वाइड मेन भी लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉर इंट आई इक्वल्स 1 सेमीकोलन, ये एक एक्सप्रेशन होगी, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, ये कंडीशन होगी, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक जाएगी, ये लूप 10 मरतबा एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद इसकी बॉडी में कंट्रोल जाएगा, बॉडी में क्या है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसके बाद \n है और यहाँ पे आई को लिखा गया है उसके बाद। अब यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो है 1, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होगा ऊपर इंक्रीमेंट पोर्शन में, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, स्क्रीन के ऊपर 2 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट 10 मरतबा एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है, इसकी आउटपुट नहीं दी गई। इसकी आउटपुट क्या करेंगे, आप लिख देंगे 1, फिर उसके बाद नई लाइन पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 अप टू 10 आप लिख देंगे। तो यहाँ तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन वो बोर्ड में पूछता है राइट ए डिटेल नोट ऑन फॉर लूप, तो आप यहाँ तक इसको लिख देंगे, ठीक है। इसकी डिस्क्रिप्शन सिर्फ आपको समझाने के लिए उसने लिखी है। अगर आपको ये
प्रोग्राम समझ आ गया तो इसकी डिस्क्रिप्शन को आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। इसको एक मरतबा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही है। इस लेक्चर में हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किए। पहला लॉन्ग क्वेश्चन था डाटा स्ट्रक्चर, उसमें हमने एरे डाटा स्ट्रक्चर के मुतालिक पढ़ा। लॉन्ग क्वेश्चन था, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता तो उसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। फिर हमने फॉर लूप का पूछा, फॉर लूप में से मस्ट एक क्वेश्चन आना है, फिर मैं कह दूं कि इसमें से प्रोग्राम आ सकता है या फॉर लूप के मुतालिक एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इसमें मेहनत कम है और नंबर आपके पूरे हैं, इसमें गलती की गुंजाइश भी कम है। यानी कि अगर ये 2 लाइनों का कोड आपके पास है, देखें, और इन 2 लाइनों में आपने कोई मिस्टेक कर दी तो हो सकता है आपके 2 नंबर कट जाएं। तो इसको आपने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने देखना है। जो कंडीशन, जो वैल्यू, जो रिक्वायरमेंट है उसकी एग्जामिनर की, उसको आपने फुलफ़िल करना है। तो आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपनी रहमत के साए के नीचे रखे, इल्म को बांटने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपने क्या करना है, इसको सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ऐसे बच्चों तक पहुँचे जो कि अच्छी कोचिंग से महरूम हैं। स्कूल्स में उनको या तो ये कोर्स नहीं करवाया गया या उनको कोई और ज़रिया मैसर नहीं है, तो उन तक ये वीडियो मेरी पहुंच सके। इसमें आपका कुछ भी नहीं लगेगा, ना मैं आपसे कोई चीज़ जो है वो डिमांड कर रहा हूँ। सिर्फ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।